دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ سجنے کو تیار۔ آئی سی سی ورلڈ کپ کا آج سے بھارت میں آغاز۔ افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں احمد آباد میں مد مقابل۔ میچ دن 1:30 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ پاکستان اپنا پہلا میچ کل نیدرلینڈ کے خلاف حیدرآباد میں کھیلے گا۔ میگا ایونٹ 19 نومبر تک جاری رہے گا۔ کرکٹ ورلڈ کی چمچماتی ٹرافی کی رونمائی۔ ایونٹ میں شریک تمام ٹیموں کے کپتانوں کا ٹرافی کے ہمراہ فوٹو شوٹ۔ قومی ٹیم کے کپتان بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم۔ سنہری موقع ہے کہ 100% پرفارمنس دکھائیں بابر اعظم۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ سرچ انجن گوگل نے اپنا ڈوڈل تبدیل کر لیا۔ ڈوڈل آرٹ ورک میں 0 پر آؤٹ ہونے والے بلے بازوں کو خوب نظر میں رکھا گیا ہے۔ گوگل نے بیٹ اٹھائی 2 ڈکس کو پچ پر رنز بناتے دکھایا۔ گوگل دنیا بھر میں مختلف ثقافتی، سماجی اور کھیلوں کے ایونٹس کے موقع پر دلچسپ ڈوڈلز تیار کرتا رہتا ہے۔ نگران حکومت کی مثبت معاشی پالیسیوں کے ثمرات۔ اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 47,300 کی حد عبور کر گیا۔ ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ بھی جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ₹1.18 کی کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر $283.50 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا 6واں اجلاس۔ ملکی خزانے کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے قومی ملکیت والی کمپنیوں کے نجکاری کے عمل کو تیز کرنے پر اتفاق۔ آرمی چیف کا معیشت کی بحالی اور ترقی کے لیے مکمل تعاون کے عزم کا اعادہ۔ سرمایہ کاری کے لیے طے شدہ اہداف کے حصول کے لیے اقدامات پر اظہار اطمینان۔ شدید خسارے والی سرکاری اداروں کے نجکاری کے عمل کا بھی جائزہ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ملکی معیشت کی بہتری کے لیے پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ملک چھوڑنے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن میں 26 دن رہ گئے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا۔ بصورت دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے۔ اسلام آباد میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن 503 افراد کے خلاف فورن ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز۔ کوئٹہ میں بھی غیر قانونی مقیم 200 افغان مہاجرین فورن ایکٹ کے تحت گرفتار۔ مقدمات درج۔ پاکستان افغان مہاجرین کے خلاف نہیں، غیر قانونی مہاجرین کے خلاف ہے۔ پاکستان نے لاکھوں مہاجرین کی دہائیوں تک کھلے دل سے میزبانی کی۔ پاکستان اس حوالے سے افغان عبوری حکومت کے ساتھ بات چیت جاری رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ۔ چمن میں پاک افغان بارڈر کراسنگ پر افغان فوجی کی بلا اشتعال فائرنگ۔ 12 سالہ بچے سمیت 2 پاکستانی جاں بحق۔ پاکستانی دستوں کی جانب سے انتہائی تحمل کا مظاہرہ۔ غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز کارروائی پر پاکستان کا افغان حکام سے رابطہ۔ پاکستان اور ترکی کا اقتصادی، تجارتی، ثقافتی، سیاحت اور عوامی سطح پر روابط سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی سے پاکستان میں تعینات ترک سفیر محمد پخاچی کی ملاقات۔ تاریخی اور برادرانہ تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی۔ پاکستان امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا اور انہیں اعلیٰ سطح پر لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں ملکوں کو اقتصادی اور غیر سیکیورٹی شعبوں میں تعلقات مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ سماجی و اقتصادی ترقی دونوں ممالک کا بنیادی ترجیح ہے۔ پاکستانی سفیر مسعود خان کا واشنگٹن میں فارن سروس انسٹی ٹیوٹ میں خطاب۔
अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब के सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहदा की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहदा को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए एंटोनियो गुतेरेस के साथ मिलकर काम करेगा। दुनिया में क़याम अमन अक़वाम मुत्तहदा का बुनियादी मकसद है। जोहरी हथियार रखने वाले ममालिक के दरमियान तनाज़ात को हल करने पर तवज्जो देनी होगी। मुनीर अकरम। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां जारी। मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का पेशावर में कारकुनों से खिताब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अवामी राब्ता मुहिम 13 अक्टूबर से जंग में जलसा शुरू करने का ऐलान। अवामी नेशनल पार्टी आइन, कानून और जमहूरियत पर यकीन रखती है। सरबरा ANP असफंदियार वली का बयान। कराची के असल वारिस वापस आ गए। कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में खिताब। उम्मीद है शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क भर में बिजली चोरों और डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मजीद हजारों सार्फिन बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। करोड़ों रुपए के जुर्माने, मुकदमा दर्ज, सैकड़ों गिरफ्तार। बिजली चोरी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। हुक्काम का आज़म। DHA सीनियर स्कूल फॉर बॉयज़ लाहौर के तलब और फैकल्टी मेंबरान का जिना हाउस का दौरा। मुनज़्ज़म साजिश के तहत तकरीब तारी की गई। ये बहुत तकलीफ दे लम्हात हैं। ये घर बाबाए क़ौम मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब था। शरपसंद और आलाकार याद रखें कि ऐसी साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकते। तलबा का इजहार ख्याल। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। शहादतों का सफर जारी। शहीदा में नायब सूबेदार इश्तियाक अहमद शहीद भी शामिल। इश्तियाक अहमद ने जिला बाजोड़ में 21 मार्च 2022 को दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मेरा भाई एक मुखलिस और दानतदार इंसान था। शहीद के घर वालों के एहसासात। सिख रहनुमा अमृतपाल सिंह का जेल में भूख हड़ताल का ऐलान। भूख हड़ताल में जेल के बाकी मानदा कैदी भी शामिल। बड़ी तादाद में कैदियों की भूख हड़ताल से जेल इंतजामिया परेशान। मोदी सरकार सिखों की आवाज दबाने के लिए ओछे हथकंडे आजमा रही है। तज्जियाकार। भारत में मजहबी बुनियादों पर सहाफियों की गिरफ्तारियां। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का इजहार तशवीश। मिलन हैदर और रुपेश सिंह समेत तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा। चंद सालों में भारत में मजहबी आज़ादी शदीद तनज़्ज़ुल का शिकार हुई। सरबराह अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का मोदी हुकूमत पर अक़लियतों के खिलाफ मुतहर्रिक इंतहा पसंद गिरोहों की सरपरस्ती का इल्ज़ाम। कौम के मेमारों को सलाम। पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद माशरे में असातिज़ा के अहम किरदार को उजागर करना और उन्हें खिराज तहसीन पेश करना है। आलमी दिन मनाने का मकसद माशरे में पेशावर असातिज़ा को उनका जायज़ मकाम दिलाना और उन्हें दौर जदीद में निज़ाम तालीम में होने वाली तब्दीलियों से बाखबर किया जाए। अटक में 8वीं सालाना मूंगफली मेले का इनेकाद। मूंगफली नकद आवर फसल है जिसे सोने की डली भी कहा जाता है। पाकिस्तान में इसकी पैदावार सिर्फ 8 से 20 मन फी एकड़ है। तहकीकाती इदारा बराए मूंगफली अटक की सिफारिश करदा मूंगफली की इकसाम और इसी इदारे की सिफारिश करदा तरीक़ेकार को अपना कर किसान 50 से 60 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं। अटक में गुज़िश्ता साल 11,12,353 मन पैदावार हुई थी। चित्राल से ताल्लुक रखने वाले नायब सूबेदार शहजाद अहमद फ्रंटियर कोर नॉर्थ पाकिस्तान कलर हासिल करने वाले पहले पोलो खिलाड़ी। शहजाद अहमद को 16 साल से शंदूर पोलो फेस्टिवल ट्रॉफी उठाने का एहसास हासिल। वर्ल्ड पोलो क्वालिफाइंग राउंड में इंडिया के खिलाफ दोनों मैचेस जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रहे। शहजाद अहमद को पाक फौज और फ्रंटियर कोर की जानिब से खिराज तहसीन पेश किया गया और इनाम से नवाजा गया है। और पाक फौज की काविशों से दहशत गर्दी से मुतासरा स्वात में अमन और तरक्की का नया दौर शुरू।
स्वात में नई तारीख रकम, पहली बार खवातीन क्रिकेट मैच का इनेकाद। मैंगोरा क्रिकेट टीम ने कबल की टीम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7 रन से हरा दिया। मैच के इनेकाद से बहुत खुश हैं। खवातीन हर शोबे में अहम किरदार अदा कर रही हैं खवातीन क्रिकेटर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज आज से भारत में हो रहा है। मजीद तफसील बताएंगे अनीस। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। शाकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज आज से भारत में हो रहा है। 19 नवंबर तक जारी रहने वाले इवेंट में 10 टीमें अपनी किस्मत आजमाएंगी। टूर्नामेंट राउंड रॉबिन और नॉकआउट की बुनियाद पर खेला जाएगा। तफसील बता रहे हैं ज़िशान क़य्यूम अपनी इस रिपोर्ट में। ट्रॉफी 1 और दावेदार 10। कौन सी टीम बनेगी चैंपियन, सबको है इंतजार। दो 2023 में होने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप मजमूई तौर पर वनडे वर्ल्ड कप का 13वां एडिशन है। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होने वाले मेगा इवेंट में 10 टीमें मैदान में उतरेंगी। भारत ने बतौर मेजबान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। आईसीसी सुपर लीग की 7 टीमों ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका ने बराह रास्त मेगा इवेंट में जगह पक्की की। Right, he's gone for the big one and will clear the field. श्रीलंका और नेदरलैंड्स ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलकर मेगा इवेंट का टिकट कटाया। Skipper does it. क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इस हवाले से भी मुनफरिद है कि पहली मर्तबा 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज इवेंट में शामिल नहीं। क्वालिफाइंग मरहले में स्कॉटलैंड से शिकस्त ने वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप में शिरकत से रोक दिया। And for the first time in one-day internationals, Scotland have overturned the West Indies. क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में मजमूई तौर पर 48 मुकाबले भारत के 10 स्टेडियम्स में मुनक्किद होंगे, जिनमें अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे के स्टेडियम शामिल हैं। Short and through, first boundary, and it's off the bat of Mohammad Rizwan. 12 नवंबर तक इवेंट में राउंड रॉबिन मुकाबले होंगे, जिसके बाद 4 बेहतरीन टीमें सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। सेमीफाइनल्स 15 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में शेड्यूल है। Big one from Shaheen Shah Afridi. ज़िशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। Again, that's massive. That's 30 rows back, Mel Jones. क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का इफ्तिताही मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच दिन 1:30 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमें गुज़श्ता वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट हैं, जिसमें इंग्लैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद सुपर ओवर में फतह हासिल की थी। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 95 वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं और दोनों ही 44 मैचेस जीतने में कामयाब हुई। 3 मैच टाई हुए और 4 मुकाबले बेनतीजा रहे। वर्ल्ड कप में भी दोनों टीमें फतह के एतबार से बराबर हैं। 10 मरतबा आमने सामने हुई और 5-5 मरतबा कामयाबी समेटी। Williamson going over. Down the ground. Here's Bolt. They're going to push. Are we in for a super? आईसीसी वर्ल्ड कप से कबल तमाम टीमों के कप्तान अहमदाबाद में तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि वर्ल्ड कप में सुनहरी मौका है कि 100% कारकर्दगी दिखाएं। काफ़ी अच्छा हॉस्पिटैलिटी मिली हमें और वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग फॉर दिस, बट आई थिंक द वे
people responding over our team. So everyone enjoyed it. We are like for a week in Hyderabad. So we not like we are India. We are home. So we are enjoy a lot of time, and I think the golden opportunity to everyone to give us 100% and enjoy the tournament. आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 1975 में हुआ और हर 4 साल बाद होने वाले मेगा इवेंट का अब तक 12 बार इनकाद किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे ज्यादा 5 मरतबा फाते रही। वेस्ट इंडीज और भारत 2-2, पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका ने 1-1 मरतबा टाइटल अपने नाम किया। वर्ल्ड कप की 44 साल तारीख के हवाले से मुजीबुल हक की रिपोर्ट देखते हैं। पहला आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड की मेजबानी में खेला गया। फाइनल में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से शिकस्त देकर पहला आलमी कप अपने नाम किया। 1979 के आलमी कप की मेजबानी भी इंग्लैंड ने की। फाइनल में दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज ने मेजबान इंग्लैंड को 92 रन से हराकर क्रिकेट में अपनी बादशाहत का कामयाबी से दिफा किया। 1983 के वर्ल्ड कप की मेजबानी एक मरतबा फिर इंग्लैंड ने अपने सर ली। इवेंट का फाइनल वेस्ट इंडीज और भारत के दरमियान खेला गया, जिसमें भारत ने 43 रन से कामयाबी समेटी। 1987 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान और भारत की मुश्तरका मेजबानी में खेला गया। कोलकाता के ईडन गार्डन में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7 रन से हराकर पहली मरतबा चैंपियनशिप का ताज अपने सर पर सजाया। 1992 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में होने वाले आलमी कप में पहली मरतबा व्हाइट किट की बजाय रंगीन किट्स और सुर्ख की बजाय सफेद गेंद मुतारफ कराई गई और पहली मरतबा फ्लड लाइट्स में डे एंड नाइट मैच खेले जाने लगे। इवेंट के फाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 22 रन से शिकस्त देकर क्रिकेट की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम की। 1996 का मेगा इवेंट पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका की सरजमीन पर खेला गया। कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए फाइनल में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेटों से शिकस्त दी। 1999 में इंग्लैंड की मेजबानी में 12 टीमों के दरमियान खेला जाने वाला आलमी कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में कैंगरूज ने पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से कामयाबी समेटी। 2003 के आलमी कप की मेजबानी जनूबी अफ्रीका के हिस्से में आई। जोहान्सबर्ग में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 125 रन से शिकस्त देकर दिफाई चैंपियन होने का एजाज अपने पास ही रखा। वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर होने वाला 2007 का आलमी कप एक मरतबा फिर ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका की मुश्तरका मेजबानी में होने वाला 2011 का आलमी कप भारत ने जीता। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हराया। 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में खेले गए इवेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से हराकर 5वीं मरतबा आलमी कप जीता। इंग्लैंड एंड वेल्स की मेजबानी में 2019 का आलमी कप मेजबान इंग्लैंड ने जीता। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया मैच बराबरी पर खत्म हुआ। सुपर ओवर में भी मुकाबला बराबर रहा और फिर इंग्लिश टीम को बाउंड्री काउंट के उसूल की बुनियाद पर जीत से नवाजा गया। मीर मुजीबुल हक, पाकिस्तान के लिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप की मुनासबत से सर्च इंजन गूगल ने भी अपना डूडल तब्दील कर लिया है। गूगल दुनिया भर में मुख्तलिफ सकाफती, समाजी और खेलों के इवेंट्स के मौके पर दिलचस्प डूडल्स तैयार करता रहता है। दुनिया क्रिकेट के बड़े मार्के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के मौके पर भी गूगल ने अपनी इस रिवायत को बरकरार रखा और आज के डूडल आर्ट वर्क में गूगल ने बैट उठाई 2 डक्स को पिच पर रन्स बनाते दिखाया है। 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाजों के लिए गूगल ने बतखों का इस्तेमाल भी खूब किया है। दुनिया क्रिकेट की 10 टीमों के दरमियान वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी के लिए पंजा आजमाई आज से शुरू हो रही है। वर्ल्ड कप ट्रॉफी 1987, 1992 और 1996 के इवेंट्स में कई तब्दीलियों से गुजरी और 1999 के वर्ल्ड कप में इसे हतमी शक्ल दी गई। 1996 के वर्ल्ड कप के इख्तिताम पर आईसीसी ने फीफा वर्ल्ड कप की तर्ज पर एक मुस्तकिल वर्ल्ड कप ट्रॉफी रखने का फैसला किया। सोने और चांदी से तैयार की गई ट्रॉफी लगभग 11 किलो वजनी और 60 सेंटीमीटर लंबी है, जिसकी तैयारी पर $30,000 खर्च हुए थे। ट्रॉफी के ऊपर सोने से बना ग्लोब मौजूद है, जबकि चांदी के 3 सुतून हैं जो देखने में विकेट और बेल्स जैसे हैं। आलमी गलबे की अलामत मौजूदा वर्ल्ड कप ट्रॉफी पहली बार साल 1999 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने उठाई। दिलचस्प बात यह है कि टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को ट्रॉफी की नकल दी जाती है, जो कि असली जैसी होती है। ट्रॉफी में साबिका चैंपियंस के नाम दर्ज नहीं होते। असल ट्रॉफी दुबई में आईसीसी के हेड ऑफिस में रखी जाती है।
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन शायकीन के लिए स्पेशल ट्रांसमिशन पेश कर रहा है, जहां पीटीवी स्पोर्ट्स मेगा इवेंट के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले दिखाएगा, वहीं क्रिकेट एक्सपर्ट्स अपने तज्जिये और माहिराना आरा भी पेश करेंगे। पीटीवी न्यूज भी गाहे बगाहे अपने नाज़रीन के लिए अपडेट्स पेश कर रहा है। वर्ल्ड कप की खबरों से इतना ही, खेलों की मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन फिल वक्त आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। बहुत शुक्रिया अनीस। और अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे और मईशत के हवाले से। सबसे पहले आपको बताएं कि निगरां हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों के समरात की बदौलत डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.18 की मजीद कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर ₹283.50 पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1 सस्ता हो गया है। डॉलर की कीमत खरीद ₹281, जबकि कीमत फरोख्त ₹284 हो गई है, जबकि स्टॉक मार्केट में भी तेजी देखने में आ रही है। मजीद बात करते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास से। जी ज़मीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की मईशत के लिए जैसे गुज़श्ता महीना बहुत अच्छा गुजरा है, ये रवां महीना भी इस वक्त बहुत अच्छा साबित हो रहा है। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी होती जा रही है और आज भी डॉलर तकरीबन ₹1.18 कम हो चुका है इंटरबैंक में, जबकि ओपन मार्केट में ₹1 कम हो चुका है। अगर हम देखें तो जब से ये डॉलर 325 पे पहुंचा था ओपन मार्केट में और 307 पे पहुंचा था इंटरबैंक में, उसके बाद जब हुकूमत ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया करेंसी स्मगलर्स और ज़ख़ीराबंदों के खिलाफ, तो हमने काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट देखी कि अब तक ओपन मार्केट में ₹44 कम हो चुका है डॉलर, जबकि इंटरबैंक में डॉलर ₹23.50 कम हो चुका है। ये एक बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अगर हम इस नज़रिए से देखें कि पाकिस्तान के ऊपर जो वाजिबुल अदा कर्जों की जो हजम है उसमें भी काफ़ी कमी होती है, उसमें अरबों रुपए की कमी हमें देखने को मिलेगी। न सिर्फ ये बल्कि मुल्क में जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं उसमें भी काफ़ी तेज़ी जो है वो आ रही है। इसका असर जो है डॉलर के रेट का असर स्टॉक मार्केट में भी पड़ा है। स्टॉक मार्केट में भी हमने देखा कि ये रवां हफ्ते में इसमें बुलिश ट्रेंड देखा गया, 47,000 की हद भी अबूर कर गया था कल स्टॉक एक्सचेंज। आज भी तकरीबन 230 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट ट्रेंड कर रही है और इसका मेन रीज़न यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं, तो ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि जैसे मौजूदा हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया था इस दफ़ा पेट्रोल प्राइसेस में, तो आइंदा आने वाले टाइम में भी आवाम को रिलीफ देगी, क्योंकि जिस तरह पेट्रोल में रिलीफ मिलेगा तो महंगाई कम होगी तो जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं उसको फ़रोग हासिल होगा। इस वजह से आज स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास। नाज़रीन, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी ने मुल्क के खजाने को नुकसान से बचाने के लिए कौमी मिल्कियत वाली कंपनियों की निजकारी अमल को तेज करने पर इत्तफाक किया है। कमेटी ने सरमायाकार इदारों के साथ सरमायाकारी के लिए तयशुदा अहदाफ के उसूल के लिए उठाए गए इक़दाम पर भी इजहार इत्मीनान किया है। इजलास और इससे मुतालिक वफाकी वज़रा की प्रेस ब्रीफिंग की तफसील शाहरुख शफी से। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का छठा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में आर्मी चीफ, निगरान काबीना के अरकान, चारों निगरान सूबाई वज़राए आला ने शिरकत की। इजलास में SIFC के तहत मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए जारी इक़दामात का जायजा लिया गया। इजलास को अब तक के इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास ने इस्लाहाती अमल में तातुल और शदीद खसारे वाले इदारों की निजकारी के अमल का भी जायजा लिया और अवामी मुफाद और मुल्की खजाने को नुकसान से बचाने के लिए इन कंपनियों की निजकारी के अमल को तेज करने पर इत्तफाक किया। कमेटी ने सरमायाकारी के मुकामी और बैन अक़वामी इदारों के साथ तयशुदा अहदाफ के हसूल के लिए उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने वज़ारतों को होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच को मरकजी हैसियत देते हुए ऐसे इक़दामात जारी रखकर मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने की अहमियत पर जोर दिया। इजलास में आर्मी चीफ ने मुल्की मईशत की बहाली और तरक्की के लिए पाक फौज के हुकूमत के साथ मुकम्मल तावन के अज़म का अदा किया। इजलास से मुतल्लिक मीडिया ब्रीफिंग में निगरान वफाकी वज़रा ने बताया कि मुल्क की मुआइशत की बेहतरी के लिए किए गए इक़दामात के असरात नुमायां हैं और डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हो रहा है। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि हुकूमती इक़दामात से मुआइशत बेहतरी की जानिब गामजन है। टैक्स जो इवेड करके लोग डॉलर बना रहे थे, जो पैसा जो है यहाँ से पैसा बाहर भेज रहे थे हुंडी हवाले के थ्रू, उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ। ये करेंसी जो है उसकी ये सारी ड्राइव, ये 160 से जो 330 रुपए तक गया, ये इंटरबैंक की वजह से नहीं गया, हवाले की मार्केट के थ्रू उसको ड्राइव किया जा रहा था। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि पाकिस्तान का 14 साल बाद GCC से आज़ादाना तिजारत का मुआहिदा एक बड़ी कामयाबी है। ब्रादर मुल्क सऊदी अरब ने इसमें अहम किरदार अदा किया। 2009 से GCC का ये जो फोरम बना था जिसमें 6 ममालिक हैं गल्फ कंट्रीज़ के, और उन्होंने 14 साल के बाद
پہلا فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو پہلا ملک ہے اس کے ساتھ کیا ہے. یہ پہلا ایف ٹی اے ہے جو 14 سال بعد جی سی سی نے کسی ملک کے ساتھ کیا. افغانستان کا جو ٹرانزٹ ٹریڈ تھا اس کا صحیح قانون بنا دیا. نگراں وفاقی وزیر توانائی نے بتایا کہ بجلی چوری کے خلاف آپریشنز جاری رہیں گے. انہوں نے بتایا کہ اجلاس میں ڈسکوز کی مینجمنٹ نجی شعبے کے سپرد کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. کافی ڈیٹیل میں اس پہ ڈسکس ہوا ہے اور فائنل پہ ڈیسیژن یہ ہے کہ ہم اس کو لانگ ٹرم کنسیشن پہ پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کریں گے. گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پاکستان میں, اور لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ گیس کی اویلیبلٹی انڈسٹری کو, فرٹیلائزر سب کو کم ہو جاتی ہے. تو 2 LNG کے کارگوز نے دسمبر کے لیے فائنلائز کیے. تو انشاءاللہ دسمبر کا جو گیس کا مسئلہ تھا کافی حد تک انڈسٹری وغیرہ کا, وہ کافی حد تک حل ہو جائے گا. وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے افغان سرحد چمن باب دوستی پر افغان حدود سے فائرنگ میں معصوم شہریوں کی شہادت کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعات کسی صورت قابل قبول نہیں. انہوں نے کہا کہ بلا اشتعال فائرنگ پر پاکستانی فورسز نے کمال تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا جو قابل ستائش ہے. شاہ رخ شفیع, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وفاقی حکومت کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف خصوصی مہم کا کوئٹہ میں آغاز کر دیا گیا. اب تک بغیر قانونی دستاویزات کے مقیم 200 افغان مہاجرین کو فورن ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقات نے نیوز بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ قانونی دستاویزات نہ رکھنے والوں کو گرفتار کرنے, ان کی جائیدادوں اور کاروبار ضبط کرنے کے ساتھ ان کو رہائش دینے والوں کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. حکومت کے احکامات کے مطابق اسلام آباد میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے اور اب تک 1126 افراد کی جانچ پڑتال کی گئی ہے. ان میں سے 503 افراد کے پاس کاغذات نہیں تھے جن کو فورن ایکٹ کے تحت کارروائی کر کے عدالتوں میں پیش کیا گیا. یہ افراد جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں اور مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. 623 افراد کو منظور شدہ شناختی دستاویزات پیش کرنے پر رہا کیا گیا. اسلام آباد پولیس کے مطابق جرائم پیشہ عناصر کو غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے ساتھ منسلک کرنا درست نہیں ہے. کسی بھی غیر قانونی مقیم کو پناہ یا ملازمت دینا بھی جرم ہے جس پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. ملک بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں 26 دن باقی رہ گئے ہیں. تمام غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں مصروف رہتا ہے جبکہ وہ خود پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے. دفتر خارجہ میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ترجمان نے کہا کہ قومی کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی میزبان ملک کی ذمہ داری ہے. ممتاز زہرا بلوچ نے کہا بھارت کی جانب سے کشمیر میں مظالم جاری ہیں جہاں گزشتہ ماہ 13 کشمیریوں کو شہید کیا گیا. ترجمان نے کہا کہ پاکستان کے افغان مہاجرین کے بارے میں پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. پاکستان گزشتہ کئی عرصے سے لاکھوں مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے. پاکستان کسی خاص شہریت کے خلاف نہیں بلکہ تمام غیر قانونی رہائش پذیر باشندوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے دورہ تبت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ نگراں وزیر خارجہ چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر ٹرانس ہمالیہ فورم برائے بین الاقوامی تعاون میں شرکت کے لیے چین کے دورے پر ہے. نگراں وزیر خارجہ ٹرانس ہمالیہ فورم سے خطاب کیا اور فورم کے موقع پر چینی ہم منصب سمیت منگولیا کے نائب وزیر اعظم سے ملاقاتیں بھی کی. نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی سے پاکستان میں ترکی کے سفیر محمد پاپا جی نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں تاریخی اور برادرانہ تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ پاکستان اور ترکی نے ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا. انہوں نے ترکی میں حالیہ بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم مضبوط ملک ہیں, دہشت گردی کے واقعات ہمیں قوم کے طور پر کمزور نہیں کر سکتے. ملاقات میں پاکستان اور ترکی کے درمیان میڈیا, ڈرامہ, فلمز کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. نگران وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان اور ترکی مل کر اپنی ثقافت کو فروغ دیں. فلم اور ڈرامہ کسی بھی ملک کا عالمی سطح پر تشخص بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. ترک سفیر نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے مابین ذرائع ابلاغ سمیت زندگی کے ہر شعبے میں تعاون موجود ہے. دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی, تجارتی, ثقافتی, سیاحتی اور عوامی سطح پر روابط سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا.
कोयटा में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद के लिए आला सतह इजलास हुआ। इजलास को बताया गया कि एपेक्स कमेटी के फैसलों के हवाले से पुलिस की जानिब से ठोस इकदाम शुरू किए गए हैं, जबकि बाज़ पर अमल दरामद के लिए लाहे-अमल तैयार किया जा रहा है। इजलास में यह हतमी फैसला किया गया कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन की गिरफ्तारी, जायदाद, कारोबार जब्त, जबकि गैर कानूनी रिहाइश फराहम करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चमन में पाक अफगान बॉर्डर क्रॉसिंग पर अफगान फौजी की बिला इश्ताल फायरिंग से 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग का यह वाक़या जीरो लाइन पर दोस्ती गेट पर पेश आया। इस वाक़े में एक बच्चा जख्मी भी हुआ। पाकिस्तानी दस्तों ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया और जाँ बहक शहरियों के जस्तेखाकी और जख्मी बच्चे को DHQ अस्पताल चमन मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान ने अफगान हुकाम से इश्तिआल अंगेज़ी का मामला उठाते हुए मुजरिम को हवाले करने का मुतालबा किया है। उबूरी अफगान हुकूमत से इस तवक्को का इजहार किया गया है कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाएगा। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना और उन्हें आला सतह पर ले जाना अवलीन तरजीह है। वाशिंगटन में फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में अमरीकी सफारतकारों से गुफ्तगू में सफ़ीर मसूद खान ने कहा कि दोनों ममालिक अपने इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करने और गैर सिक्योरिटी शोबों में अपने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कोशां हैं। इलाकाई इस्तेहकाम और मजबूत इक़्तिसादी शराकत दारी के ज़रिए समाजी और इक़्तिसादी तरक्की दोनों ममालिक की बुनियादी तरजीह है। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत इक़्तिसादी शराकत दारी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। उन्होंने जोर दिया कि नामज़द सफारतकार अवामी सफारतकारी के ज़रिए दोनों ममालिक के हवाले से बाहमी गलतफहमी और बदगुमानियों को दूर करने के लिए अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया है। न्यूयॉर्क में हमारा मुश्तरका एजेंडा के उन्वान से मुनक़िदा आला सिफारतकारों के इजलास में इज़हार ख़याल करते हुए मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और कसीर फ़रीक़ी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए एंटोनियो गुतेरेस के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया को संगीन खतरात का सामना है। जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक के दरमियान तनाज़ात का खतरा मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा को इस जानिब तवज्जो मरकूज़ करनी होगी। तरक्की पसीर ममालिक के साथ माशी नाइंसाफ़ी का खात्मा करना होगा। मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल में इस्लाहात पर भी जोर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तक़बाल के लिए तैयारियां जारी हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहाँ पर कारकुनों की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया। कारकुनों से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ किसी से इंतकाम लेने नहीं बल्कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए वतन वापस आ रहे हैं। हमारी सियासत का महवर मुल्की मसाइल को हल करना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 में साजिश के जरिए हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो आज मुल्क तरक्की के जीने पर होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि हमारी जमात मुल्क में बरवक्त इंतखाबात के हक में है। मुल्क में आम इंतखाबात का शेड्यूल आना चाहिए। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हम इंतखाबात से भाग नहीं रहे, अवाम मनफी प्रोपेगेंडे पर कान न धरें। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल तक हुकूमत की, लेकिन सूबे के अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। मुल्क के मसाइल का हल पीपल्स पार्टी ही पेश कर सकती है। इससे पहले पार्टी के डिजिटल विंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत ने कारकुनों तक रसाई के लिए सोशल मीडिया विंग को मज़ीद मुतहर्रिक करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करें। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में जमहूरियत के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार ने PTI छोड़ने का फैसला करते हुए कहा है कि 9 मई के वाक़यात अचानक नहीं हुए। चेयरमैन PTI ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की जहन साजी की। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI में एक ग्रुप टकराव चाहता था। इन लोगों ने मुफाहमत पसंदों को पीछे धकेल दिया। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी की सूरत में हसास तनसीबात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी हुई। 9 मई का जो वाक़या है वो एक दिन में रूनुमा नहीं हुआ। जब मरकज़ में हमारी हुकूमत चली गई और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 माइंड सेट कह लें या 2 ग्रुप कह लें। एक वो माइंड सेट जिसमें मुराद सईद, आज़म स्वाति, महाज अज़हर, फारूक हबीब, हालांकि मेरे दोस्त हैं सारे, वो टकराव, हाँ ये एंटी फौज जी, और टकराव की सियासत को सपोर्ट करना।
نہیں عمران خان صاحب کا کیا اس میں پلاننگ تھی یا کیا؟ میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. اور ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا جیسے اسد عمر ہے یا عمر ایوب ہیں یا علی محمد خان کی آپ بات کر رہے ہیں, شفیع محمود صاحب بھی تھے, میں خود بھی تھا, جو کہ مفاہمت کی راستے کی بات کرتے تھے. ہاں بالکل. عمران خان صاحب جو مراد سعید یا جیسے معظم سواتی صاحب کی بات کر رہا ہوں, اس مائنڈ سیٹ کو جو ٹکراؤ کا, جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایون اس حد تک بات کی گئی کہ دباؤ میں لانے کے لیے اگر ریاستی اداروں کے اوپر ہمیں حملہ بھی کرنا پڑتا ہے تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھا گیا. عمران خان صاحب نے انسٹرکشن دی تھی, وہاں ڈسکس ہوتا تھا نا میٹنگ میں, عمران صاحب موجود تھے. ہاں خان صاحب تھے, ہم سب بیٹھے ہوتے تھے. ان کی سوچ یہی تھی کہ شاید ٹکراؤ سے یا پریشر بلڈنگ سے ہم کوئی رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس گروپ کو زیادہ سپورٹ کر رہے تھے جن کی سوچ ایک ٹکراؤ والی تھی. اس گروپ کا جو بیانیہ تھا میں سمجھتا ہوں ودن پارٹی پریویل کرتا جا رہا تھا, اور عمران خان صاحب اس پالیسی کو یا اس چیز کو سپورٹ بھی کر رہے تھے. استحکام پاکستان پارٹی 13 اکتوبر کو جنگ سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر رہی ہے. لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پارٹی کی مرکزی سیکریٹری اطلاع ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ نگران حکومت اور آرمی چیف کے ملک کی بہتری اور خوشحالی کے لیے بھرپور اقدامات قابل ستائش ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے حوالے سے کمیٹی کا فیصلہ نہایت آسان اقدام ہے. فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ ہماری جماعت کا مقصد ملک کو مستحکم کرنا اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ کراچی کو لوٹنے والے پریشان ہیں کہ کراچی کے اصل وارث واپس آ گئے ہیں. کراچی کے علاقے ملیر میں کارنر میٹنگ میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اتوار کو ایم کیو ایم پاکستان کا کامیاب جلسہ منعقد کرنے پر کارکنان مبارکباد کے مستحق ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی الیکشن مہم کا آغاز ملیر کے علاقے سے کیا ہے اور اب ہم پورے سندھ میں الیکشن مہم کو بڑھائیں گے. ادھر امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ شفاف انتخابات ملک کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف مؤثر اقدامات سے عوام کو فوری ریلیف مل سکتا ہے. امیر جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ الیکشن میں التوا کی کوئی وجہ نہیں ہے. دیکھ رہے امید ہے نگراں حکومت ملک میں بروقت اور شفاف الیکشن یقینی بنائے گی. اور عوامی نشر پارٹی کے مرکزی صدر اسفند یار ولی خان کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے. عام انتخابات کے حوالے سے امیدواروں کی نامزدگی کے لیے صوبائی سطح پر بااختیار اور آئینی پارلیمانی بورڈ موجود ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ٹکٹوں کے حوالے سے شکایات اور اپیلوں کے لیے صوبوں کے اپیلیٹ بورڈ پارٹی کے آئینی ادارے ہیں. اے این پی سربراہ کا کہنا تھا کہ پارٹی آئین اور دستور کا اطلاق تمام تنظیمی ذمہ داران اور کارکنان پر یکساں ہوتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ تحفظات کے لیے متعلقہ فورمز کے بجائے سوشل میڈیا اور دیگر فورمز کا استعمال نامناسب ہے. تمام ذمہ داران اور کارکنان پارٹی آئین پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنائیں. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے کاروباری شخصیت حاجی نواب، قبائلی رہنما سردار فرید عمر اور سماجی رہنما لال خان کاکڑ نے اسلام آباد میں ملاقات کی. ملاقات میں بلوچستان بالخصوص زیارت، ہرنائی اور سنجاوی میں کاروباری طبقے کو درپیش مسائل پر بات ہوئی. نگراں وزیر اعظم سے سبکدوش ہونے والے چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے اسلام آباد میں الوداعی ملاقات کی. پاک بحریہ کے لیے ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کی خدمات کو سراہتے ہوئے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ آپ نے بہترین طریقے سے پاک بحریہ کی قیادت کی اور ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا. اور ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز سندھ کے اشتراک سے پاکستان کے چاروں صوبوں بشمول آزاد جموں و کشمیر، اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں نامور تعلیمی اور سماجی شخصیات کو اکیڈمیا چوائس ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے. یہ شخصیات اپنی زندگی کا ایک طویل وقت اور توانائی تعلیم، سماجی خدمت کے شعبے کو دینے پر خراج تحسین کے مستحق ہیں. وفاقی وزیر تعلیم مدد علی سندھی، وزیر تعلیم سندھ رانا حسین، میئر کراچی وہ جو کہ غالباً تشریف لانے والے ہیں، اسکولز اور کالجز ایجوکیشن کے سیکرٹریز، سندھ کے تمام تعلیمی بورڈز کے چیئرمین،
चेयरपर्सन डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अफसरान और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अहदेदारान की मौजूदगी इन तमाम इनाम याफ्तगान के लिए हौसला अफजाई का सबब है। आज के दौर में मुल्कों और कौमों की तरक्की और बरतरी का मुकाबला क्लासरूम में होता है, जबकि क्लासरूम की बेहतरी का सबसे बड़ा पैमाना उस्ताद है। इसका मतलब ये है कि दुनिया का नक्शा क्लासरूम में बनता है और मुकम्मल होता है, जबकि क्लासरूम का दारो मदार एक अच्छे उस्ताद पर होता है। यानी आज का दिन एक अच्छी और मुकम्मल दुनिया की तश्कील का दिन है, जिस पर शोबा तालीम से वाबस्ता हर एक फ़र्द बिलखुसूस असातिज़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। एक जानिब ये दिन हम असातिज़ा को अपनी इज़्ज़त और अहमियत का एहसास दिलाता है, और दूसरी तरफ जदीद दौर के चैलेंजेस भी हमारे सामने रखता है। 21वीं सदी में तदरीस का मेयार मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है। हाफ़ज़े की जगह महारत और ज़हानत की जगह मुतवाज़िन शख्सियत ने ले ली है। आज के दिन हमें नौजवानों की ज़हनी काबिलियत के अलावा जिस्मानी तंदुरुस्ती, जज्बाती, माशरती नशोनुमा के साथ अच्छे इखलाक के लिए ठोस हिकमत अमली तैयार करनी होगी। सिर्फ वाज़ और तकरीर से काम नहीं चलेगा, बल्कि मुकालमा, तनकीद, तहकीक और तहकीक की बुनियाद पर नौजवान नस्ल को तालीम देना होगी। ये बात याद रखने की है कि कौम की तामीर और तश्कील तसल्सल के साथ साबित कदमी और अमली कोशिश से मुमकिन है, जिसके लिए हर स्टेक होल्डर को अपनी ज़िम्मेदारी संजीदगी और खुलूस से पूरी करनी होगी। रब कायनात पाकिस्तान और हम सब का हाफिज़ और नासिर रहे, आमीन। थैंक यू। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस टाइब मकबूल बाखिर कराची में असातिज़ा के दिन के हवाले से तक़रीब से खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि उस्ताद का माशरे में कलीदी किरदार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-कादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट केस में डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ और लेबर डिपार्टमेंट को अल-कादर ट्रस्ट की चैरिटी कानून के तहत रजिस्ट्रेशन के फैसले के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया है। केस की समाअत मियां जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने की। और नाज़रीन, बुशरा बीबी की अपने शौहर की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ारत दाखिला, सुपरिटेंडेंट अदियाला जेल और FIA को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर मिल मालिकान के दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए करार दिया है कि चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार वफाक के बजाय सूबों के पास है। 18वीं तरमीम के बाद वफाक की हुकूमत चीनी की कीमतों के तयन के मामले में मदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 3 अक्टूबर को समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। और नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी 5 अक्टूबर को असातिज़ा के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। दिन मनाने का मकसद इंसानी शऊर की अफजाइश में असातिज़ा के किरदार का एतराफ़ और उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना है। नमरा सुहेल की रिपोर्ट। अरस्तु ने कहा था, जो लोग बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं उनकी इज्जत करो। माँ बाप तुम्हें पैदा करते हैं, लेकिन उस्ताद तुम्हें अच्छी जिंदगी गुजारने का फन सिखाते हैं। तरक्की की मंजिलें तालीम से जुड़ी हैं, और कौन है जो तालीम में असातिज़ा के किरदार से इनकार कर सके। इस साल यूनेस्को, यूनिसेफ और एजुकेशन इंटरनेशनल के साथ मिलकर असातिज़ा की कमी को दूर करने के लिए आलमी ज़रूरत के मौजू से असातिज़ा के आलमी दिन को मना रहा है। मयारी तालीम तक रसाई मयारी असातिज़ा की दस्तयाबी से ही मुमकिन है। यूनेस्को के 2018 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूलों में 44 तालिब इल्मों के लिए एक उस्ताद का तनासुब है। दुनिया में अमन कायम करने, गुर्बत के खात्मे और मुसलसल तरक्की करने में तालीम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आज भी दुनिया में असातिज़ा की शदीद कमी है। इसको पूरा करने के लिए यूनेस्को की जानिब से मुरतब की गई रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक 2 करोड़ 70 लाख असातिज़ा को भर्ती करने की जरूरत होगी। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
शहदाए पाकिस्तान को सलाम। पाक वतन की मिट्टी में अनगिनत शहदा का खून शामिल है। शहादतों का ये सफ़र पाकिस्तान के वजूद में आने से लेकर अब तक जारी है। इन शहदा में से एक नायब सूबेदार इश्तियाक अहमद शहीद भी हैं। नायब सूबेदार इश्तियाक अहमद शहीद ने ज़िला बाजोड़ में 21 मार्च 2022 को दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद के घर वालों ने अपने एहसासात बयान करते हुए कहा, هغه چې کوم په بارډر باندې د دهشتګردو سره مقابله کول هغه ډېره دلیره کړې وه، شاته شوی نه و. هغه خپله مقابله ډېره بهترینه کړې وه. هغه ته اخري کې بیا شهادت نصیب شو او په دې باندې موږ خفه نه یو چې دا زموږ ورور شهید شو، ځکه چې موږ په دې شهادت کې موږ شامل شو، مور مې شامله شوه. موږ ټول کله علاقه په فخر کوو چې اشتیاق شهید شو. په دې باندې زموږ علاقې ډېر لوی نوم جوړ شو. اور بیا هم پاک آرمی ته که زمونږ د رور د بل یا وراره ضرورت وي نو مونږ ورکولی شو. مونږ د آرمی مشکور یو، مونږ په دې خفه نه یو چې یاره زمونږ دا رور شهید شوی دی. شکر الحمدلله، شکر الله په دې مونږ ډېر شکر دی چې مونږ رور شهید شو او دا شهادت هغه ډېر کمو خلکو ته ملاویږي. لاله په هغه باندې ډېر زیات فخر کوم چې شهید شول. یا ډېر زیات په مېړونو خویندو په مور باندې ډېر زیات میان و. مینه په ډېر زیاته مینه خوشحال یم چې موږ د یو شهید زه خور یم، دا مې مور ده. هغه به دا خبرې کوي چې ما ته دا دعا کوي چې زه شهید شم. هغه د شهادت د مرګ ډېر زیات هغه و. موږ هغه ټیم کې ډېر پهله خفه هم ډېر شو، خو بیا مې وایي چې دومره هغه وکړه چې خپل وطن دپاره قرباني ورکړه. ځان یې دومره هغه شهید کړلو. नाज़रीन 9 मई को स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा जब घिनौनी साजिश के तहत बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब जिन्ना हाउस पर बदतरीन अंदाज से हमला किया गया। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिन्ना हाउस का दौरा करते हैं और इस बदतरीन फेल पर शदीद रंज का इजहार करते हैं। लाहौर के तालिब इल्मों और फैकल्टी मेंबर्स के जिन्ना हाउस दौरे की तफसील फरहाना खान से। सीनियर स्कूल फॉर बॉयज DHA लाहौर के तालिब इल्म और फैकल्टी मेंबर्स ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि बाबा कौम के घर की ये हालत मुनज़्ज़म साजिश के तहत की गई। वफ्द ने कहा कि पाकिस्तानी कौम होने के नाते हमें नफरत की सियासत करने वाले अनासिर की हौसला शिकनी करनी चाहिए। वफ्द ने मुतालबा किया कि शरपसंदों, सहूलतकारों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी तखरीबकारी का सोच न सके। जो बिल्डिंग की हालत हमने देखी और बच्चे भी इस चीज़ के बड़े ही अफसरदा हैं कि जैसे ही हम एंटर हुए तो बिल्डिंग को हर तरफ से नुकसान पहुंचाया गया। हालत देख के काफ़ी दुख हुआ। जो इसके अंदर की बहुत अच्छी चीज़ें थी उन्हें जिस तरह तबाह किया गया। जो भी लोग इस चीज़ में मुलव्विस थे उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। 9 मई को जो भी सानिया हुआ बहुत बुरा हुआ। जिन लोगों ने भी किया वो काबिल मुज़म्मत है। कायदे आज़म की पर्सनल बिलोंगिंग के साथ उनको तोड़ फोड़ की, उनको तोड़ा और जिस तरह यहाँ पे लोगों ने आके इस पूरी जगह को जलाया, हमें इसका बहुत दुख है। वफ्द ने कहा कि शरपसंदों और आलाकार साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमजोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और मुल्क से बाहर बैठे भगोड़े यूट्यूबर की भारतीय खुफिया एजेंसी से जुड़े रोहित शर्मा से खुफिया बातचीत मंजर आम पर आ गई है। पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ साजिश, मन घड़त प्रोपेगेंडे और हरसा सराई पर मबनी गुफ्तगू ने सूरत हाल को आया कर दिया। नहीं, मेरे खिलाफ वो केस तो पिछले साल अगस्त का है जो ये बार बार रिस्पॉन्सिबल और उसमें मैं अरेस्ट हूँ यहाँ पे क्योंकि ये आएगा नहीं, लेकिन मेरे ऊपर तो ये अभी बूंदियां मारते हैं, ये खबरें सिर्फ छुपवाते हैं इस तरह की। जो केस है भी उसमें अभी ब्रिटिश कोर्ट ने कहा है कि भाई 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ। तो 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ ना पहले तो सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट कि तुम तो यहाँ पे तुम तो ISI के। अच्छा एक चीज आपको बताऊं, लॉर्ड रेमी रेंजर का नंबर आपके पास? लॉर्ड
नहीं लॉर्ड नहीं, मेरे पास नहीं। मैं नंबर देता ठीक है, हूँ, ठीक है, ठीक है, नंबर दे ठीक है, देता हूँ, आराम से मुझसे ठीक है। बात कर लेना, ठीक है। उनसे बोलना कि उनका कोई आदमी हो, वो मिलके वो जो आईएसआई का जो बंदा है ना, उसके खिलाफ केस डलवा दे कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है और ये इंडिया में टेररिज्म। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला कुलगाम में मजीद 2 और कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने बासित अमीन भट्ट और साकिब अहमद लॉन नामी नौजवान को जिला के इलाके कजर में मुहासिर और तलाशी की कार्रवाई में शहीद किया। उधर नामालूम अफराद की फायरिंग से जिला इस्लामाबाद के इलाके नेहामा का रहायशी एक कश्मीरी शहीद साहिल बशीर डार जख्मी हो गया, जिसे करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान में सऊदी अरब के इमदादी इदारे शाह सलमान रिलीफ सेंटर ने सिंध और पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में खुराक तकसीम की। सिंध में सजावल और दादू, जबकि पंजाब में बहावल नगर और मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में 9400 खुराक के पैकेट तकसीम किए गए। हर पैकेज में 80 किलो आटा, 5 लीटर खाने का तेल, 5 किलो चीनी और 5 किलो दाल चना शामिल है। मजमूई तौर पर 65,800 सैलाब से मुतासर अफराद को ये इमदादी सामान पहुँचाया गया। और नाज़रीन, अटक में 8वां सालाना मूंगफली मेले का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में मुकर्रिरीन ने कहा कि मूंगफली नकदावर फसल है जिसे सोने की डली भी कहा जाता है। पाकिस्तान में इसकी पैदावार सिर्फ 8 से 20 मन फी एकड़ है, जबकि तहकीकाती इदारा मूंगफली के सिफारिश करदा इकसाम और तरीक़ेकार को अपना कर इसकी पैदावार को कई गुना बढ़ा सकता है। तकरीब में ज़राअत से मुतालिक मशीनरी तैयार करने वालों और ज़राअत के शोबे में मूंगफली, जैतून, मकई, गंदम और दीगर सब्जी फ्रूट से कसीर मुनाफा कमाने वाली ज़राअत से वाबस्ता अफराद ने स्टॉल लगाए। तकरीब में ज़रई शोबे से वाबस्ता अफराद, मुख्तलिफ सरकारी इदारों के अफसरान और सिविल सोसाइटी के अरकान ने कसीर तादाद में शिरकत की। खालिस दूध की यकीनी फराहमी के लिए पंजाब भर में बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मंडी बहाउद्दीन में मुसर सेहत मिलावटी दूध की तरसील नाकाम बना दी। मंडी बहाउद्दीन में डेयरी सेफ्टी टीम ने फेरावाली नहर पर नाकाबंदी की और मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा मारा और 1500 लीटर जाली दूध तल्फ किया। जाली तैयार दूध को मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट में सप्लाई किया जाना था। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक शहरी घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले दूध को पंजाब फूड अथॉरिटी दफ्तर से मुफ्त टेस्ट करवा सकते हैं। लेस्को रीजन में भी बिजली चोर और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। क्रैकडाउन के 28वें रोज़ तमाम अजला में 421 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। 419 बिजली चोरों के खिलाफ FIRs की दरखास्तें मुतल्लिका थानों में दर्ज कर दी गईं, जबकि 58 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। तमाम सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता करके इनको यूनिट्स डिटेक्शन बिल के मद में चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत 3,63,93,000 रुपये है। गैप को कभी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन 29वें रोज़ में दाखिल हो गया। सर्वेलेंस टीमों ने कामयाब कार्रवाइयां करते हुए 51 मजीद बिजली चोरों को पकड़ लिया। गैपको चीफ मोहम्मद अयूब का कहना है कि अब तक पकड़े जाने वाले बिजली चोरों की तादाद 1407 हो गई है। तमाम बिजली चोरों को 12 करोड़ 80 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। गैपको चीफ ने मजीद कहा कि बिजली चोरों नादहिंदगान से कौमी खजाने की एक पाई वसूल करेंगे। इनके लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है, इन्हें किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। मंडी बहाउद्दीन के इलाके साहिबवाल रांझा में कारी अल्ताफ वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। इलाके के हज़ारों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें शिरकत की। बल्तिस्तान में देसी खानों का इस्तेमाल आज भी रवायती अंदाज में जारी है। ये पकवान खालिस अज्जा से तैयार होने के बायस ज़ूद हज़म और सेहत बख्श हैं। बल्तिस्तान के देसी खानों से मुतालिक स्कर्दू से हमारे नुमाइंदे कासिम नसीम की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। बल्तिस्तान में जदीदियत के साथ यहाँ के रहन सहन और तौर तरीकों में तब्दीली के बावजूद घरों में देसी ग़िज़ा का इस्तेमाल आज भी रिवायती अंदाज में जारी है। देसी और खालिज अज्जा से तैयार करदा ये खाने खुश जायका और जूद हजम होने के साथ साथ सेहत बख्श भी साबित हुए हैं। मकामी खानों में जान, प्रपू, मीठी छोटी रोटी सबखुर, देसी बकरे की गोश्त की यखनी, साग, दही, लस्सी, खमीर की रोटी और दीगर ग़िज़ा शामिल हैं। इन खानों को मेहमानों के सामने पेश करने के भी अपने मखसूस आदाब हैं, जिनमें सबसे पहले जान को पेश किया जाता है। हलवा नुमा जान
मक्खन और खुबानी गिरी के तेल के साथ खाया जाता है। इसके बाद बितरतीब मकामी दीगर डिशेस पेश किए जाते हैं। यहाँ जो बुजुर्ग हजरात हैं उनकी सेहत का राज यही था कि ये जो खालिश चीज़ें वो खाते थे और इससे उनकी सेहत बनती थी और सेहत बेहतर रहती थी। आखिर में बल्तिस्तान का मशहूर मशरूब नमकीन चाय से मेहमानों की तवाज़ु की जाती है। ये चाय सब्ज पत्ती, सोडा, दूध, नमक और मक्खन के इम्तिजाज से तैयार होती है, जिसे मेहमानों तक गरम गरम पहुंचाने के लिए खुसूसी तौर पर समवार का इस्तेमाल किया जाता है। खाने का इख्तिताम दुआ खैर और मेज़बान के रिज्क में इजाफे के दुआ कलमात के साथ होता है। इन खानों में मौजूद भरपूर ग़िज़ाइयत के पेश नज़र लोग अब इन्हें मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए बतौर टोटका भी इस्तेमाल करते हैं। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, करदो। अहम खबर आपको दें, वफाकी हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद, गैर कानूनी अफगान महाजरीन अपने वतन रवाना हो गए। तुरखम के रास्ते कुल 30 अफगान खानदान रजाकाराना तौर पर वापस चले गए हैं, ये कहना है बॉर्डर ज़राए का। आज भी 500 अफराद अफगानिस्तान वापस चले गए हैं। दो दिनों में कुल 850 गैर रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन वतन जा चुके हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे सबूर हमारे साथ मौजूद है। सबूर, आगाह कीजिएगा। जी, वफाकी हुकूमत की अहकामात की रोशनी में गैर कानूनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम अफगान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। तुरखम बॉर्डर ज़राए के मुताबिक अभी तक 30 अफगान महाजरीन रज़ाकाराना तौर पर वतन वापस जा चुके हैं, जबकि आज भी 500 अफराद तुरखम के रास्ते अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। लिहाजा 2 दिनों में मजमूई तौर पर 850 गैर रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन अपने वतन वापस जा चुके हैं, जबकि वाज़ेह रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने इन अफगान महाजरीन को 31 अक्टूबर तक डेडलाइन दे दी है। जी बहुत शुक्रिया सबूर खटक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अस्सलामुअलैकुम, खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले तुरबत की बात करेंगे, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में 43, दादू 42, सक्खर और नवाबशाह में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। और एक ब्रेक जिसके बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिएगा।